Good evening, student. Today we'll continue our chapter, Our Health. Some diseases spread mainly by sexual contact, like syphilis and AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, caused by human immunodeficiency virus (HIV). AIDS can also be spread through blood-to-blood contact with infected people by blood transfusion or use of AIDS-infected needles during injection or other surgical instrument during an operation, or from an infected mother to her baby during pregnancy or through breastfeeding. Some diseases spread by sexual contact. Syphilis meaning a chronic disease spread from person to person by sexual contact. Example: AIDS. This acquired immunodeficiency syndrome. This AIDS may also cause through blood-to-blood contact or with by using the infected needle or during blood transfusion. If a person suffering from AIDS and his blood he donated blood to other person, then that person may have a chances or also suffer from AIDS. Means during blood transfusion by using infected needles during injection or surgical instrument during an operation, and also from an infected mother, means a mother who is suffering from AIDS, then chances of getting her baby AIDS during pregnancy or through breastfeeding. Organ specific and tissue specific manifestation. We have studied that disease causing microorganisms enter the body through air, water, food and physical contact. हम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट, right? Where do they go then? They may go to any part of our body. There are many possible places, organs or tissues where they could go. When these microorganisms enter our body, they may attack on any part of our body. Do all microbes go to same tissue or organ, or do they go to different ones? Once they enter our body, they remain in that particular organ or tissue. Different species of microbes seem to have evolved to different parts of the body. Different species of microbes. Different types of microbes. Species of microbes mean different types of microbes seem to have evolved to different parts of the body. कई बार हम लोग देखते हैं कि अलग अलग पार्ट में हम लोग को बहुत सारी माइक्रोब्स की स्पीशीज यानी उसके डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं. इन पार्ट दिस सिलेक्शन इज कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री. और जब हम देखते हैं कि ये माइक्रोब्स कहाँ से आए हैं, तो जहाँ से आए हैं वहाँ से वो डिफरेंट ऑर्गन तक पहुँच जाते हैं. इफ़ दे एंटर फ्रॉम द एयर वाया नोज, दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स. यदि वो हम जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, दैट टाइम इफ़ दे एंटर थ्रू नोज, तो वो कहाँ तक पहुँचेंगे, वो लंग्स में जाएंगे. दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस. और यदि उस इंसान को ट्यूबरक्लोसिस होता है तो हम बोल सकते हैं कि एंटर के मतलब एयर के थ्रू वाया नोज वो बैक्टीरिया उनकी बॉडी में क्या हो गया, एंटर हो गया, वायरस एंटर हो गया. इफ दिस बैक्टीरिया रीचेस आवर बोन्स वाया ब्लड, दे कॉज ब्रेकडाउन ऑफ बोन्स, वीकनिंग देम एंड कॉजिंग द डिजीज कॉल्ड एज बोन टीबी. और यदि ये बैक्टीरिया हमारी हड्डियों तक, बोन्स तक पहुंच गया है ब्लड के थ्रू, तो वो क्या करेगा, हमारे बोन्स को, हड्डियों को वीक करेगा, कमज़ोर करेगा, और जिसकी वजह से हमें बोन टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इफ़ दे एंटर थ्रू द माउथ, दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग लाइक टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया. और यदि वो हम लोग कुछ खा रहे हैं उसके थ्रू एंटर हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, हमें टाइफाइड जैसी बीमारी उससे हो सकती है. और दे कैन गो टू द लीवर लाइक द वायरसेस दैट कॉज हिपेटाइटिस. और यदि वो वायरस हमारी लीवर में चला गया
तो हमें हेपेटाइटिस जैसी बीमारी उस वायरस से हो सकती है। तो ऐसे ये डिफरेंट मीडिया है, एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कांटेक्ट, जिसकी वजह से ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एंटर होते हैं और हमें क्या होता है, फिर कोई बीमारी हो जाती है। An infection by HIV that comes into the body via the sexual organ will spread to lymph node all over the body. HIV जैसी बीमारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही होती है और सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू ही वो क्या होती है, स्प्रेड होती है। और कहाँ तक जाती है, लिम्फ नोड तक, टू लिम्फ नोड्स ऑल ओवर द बॉडी, और धीरे धीरे पूरे बॉडी में वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू मॉस्किटो बाइट विल गो टू द लीवर एंड देन टू द रेड ब्लड सेल। मलेरिया किससे होता है? यू नो द नेम ऑफ द माइक्रोब विच कॉजेज मलेरिया? in class 8 you have studied about this. You know the name of the microbe, Plasmodium और फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के बाइट की वजह से जो हमें मलेरिया होता है वो हमारी ब्लड में एंटर होता है। वो कहाँ जाता है, पहले तो लीवर में एंड देन टू द रेड ब्लड सेल, और बाद में वो रेड ब्लड सेल में एंटर हो जाता है। वी कैन इमेजिन व्हाट द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ एन इन्फेक्शन will be if we know that what the target tissue or organ is and the function that are carried out by this tissue or organ. उसके सिम्टम्स हमें पता चल जाएंगे, या उसके सिम्टम्स है या जो इन्फेक्शन हमें हुआ है, जिस ऑर्गन में हमें इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से हमें क्या पता चल जाएंगे, उस बीमारी के सिम्टम्स पता चल जाते हैं। क्योंकि जिस ऑर्गन में वो एंटर होता है तो वहाँ के ऑर्गन क्या होते हैं, दे स्टार्ट डिसफंक्शनिंग, उनका फंक्शन जो प्रॉपर वे से नहीं होता है। इफ़ द लंग्स आर द टारगेट देन सिम्टम्स विल बी कफ एंड ब्रेथलेसनेस। यदि कोई वायरस या बैक्टीरिया लंग्स में एंटर हुआ है तो आपको कफ या ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ और खांसी जैसी सिम्टम्स दिखने लगेंगे। इफ़ द लीवर इज टारगेटेड देन देयर विल बी जॉन्डिस। यदि लीवर में कोई बैक्टीरिया आपके या वायरस एंटर हुआ है तो आपको जॉन्डिस जैसी बीमारी होगी, जो एक सिम्टम है कि वायरस आपके लीवर तक पहुंच गया है। इफ़ द ब्रेन इज टारगेटेड वी विल ऑब्जर्व हेडेक, वॉमिटिंग, फिट्स और अनकॉन्शियसनेस। यदि ब्रेन में यदि कोई वायरस पहुंच गया है ब्लड के थ्रू तो हमें सिर दर्द, उल्टी होना, बार बार उल्टी होना, या फिट्स का आना जिसको मिर्गी बोलते हैं, या फिर बेहोश हो जाना, इस तरह की तकलीफ दिखने लगेगी या इस तरह के सिम्टम्स दिखने लगेंगे। इन एडिशन टू दिस टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज देयर विल बी अदर कॉमन इफेक्ट्स टू। ये तो आपके स्पेसिफिक इफ़ेक्ट्स हो गए उस पर्टिकुलर ऑर्गन में एंटर होने के बाद। इसके अलावा कुछ कॉमन इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मोस्ट ऑफ दिस कॉमन इफ़ेक्ट्स डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन। और ये जो कॉमन इफ़ेक्ट्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। यदि इम्यून सिस्टम अच्छा है, उसको इन्फेक्शन को रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो जो सिम्टम्स है वो इतने सीवियर नहीं दिखेंगे। एन एक्टिव इम्यून सिस्टम recruits many cells to the affected tissue to kill off the disease causing microbes। होता क्या है, ये जो इम्यून सिस्टम होता है ये क्या करता है, ये आपका डिफेंस सिस्टम है आपकी बॉडी का, जो आने वाले जो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, तो उनको वो क्या करता है, किल करता है। और उसके लिए वो ज़्यादा सेल क्या करता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में सेंड करता है, या ज़्यादा सेल्स को क्या करता है वहाँ पे वो बोल सकते हैं ओरिजिनेट करता है, या सेल वो वहाँ पे तैयार करता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये जो माइक्रोब्स है ये वहीं पे मर जाते हैं। ये अपनी बॉडी का ही एक डिफेंस सिस्टम है। दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन, और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बोला जाता है इन्फ्लामेशन। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट्स सच एज स्वेलिंग एंड पेन ऑफ इन्फेक्टेड पार्ट।
और ये जो डिफेंस सिस्टम हमारा बॉडी का काम कर रहा है, इसी की वजह से उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जहाँ पे ये माइक्रोब्स एंटर हुए हैं वहाँ पे एक तो स्वेलिंग आती है या फिर उस पार्ट में आपको पेन स्टार्ट होता है या दर्द होता है, सूजन आती है या फिर दर्द होता है। एंड जनरल इफेक्ट्स सच एज फीवर एंड स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। जनरल इफेक्ट आपको देखते हैं, या तो फिर आपको बुखार आ जाएगा या सूजन दिखेगी लिम्फ नोड में। ये कॉमन इफेक्ट क्या कहते हैं, मीन्स योर डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एक्टिवेटेड। आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम वो स्टिल उस माइक्रोब से क्या कर रहा है, लड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको ये स्वेलिंग या फिर पेन उस पर्टिकुलर ऑर्गन में हो रहा है। Do you know immune system all the life processes involved in identifying unwanted parts and infection causing agents and destroying them categorically without affecting the healthy cell and the tissues of the body compromise the immune system. इम्यून सिस्टम एक आपकी बॉडी का ऐसा सिस्टम है या ऐसी लाइफ प्रोसेस है जो कि आपकी इसमें जो अनवांटेड पार्ट्स है या इन्फेक्शंस है या जो माइक्रोब्स है जो कि आपकी बॉडी सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उनको वो क्या करता है, किल करता है या उनसे लड़ता है विदाउट अफेक्टिंग द हेल्दी सेल। और उसकी लड़ने की जो एक क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा उसका सिस्टम है कि बाकी सेल को जो हेल्दी सेल्स है उनके ऊपर उसका कोई असर वो आने नहीं देता है। And tissues of the body compromise the immune system. This system work against different disease causing agent and help in proper functioning of the body. और ये जो सिस्टम है बहुत सारे डिजीज के अगेंस्ट काम करता है, फ्रॉम वायरस टू वर्म्स, एंड हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। और इस तरह से हमारी बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है ये आपका इम्यून सिस्टम। इसलिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में कोरोना के इसमें जब सब लोग सफ़र हो रहे हैं, तब भी आप देख रहे हो कि हर बोलते हैं कि आप दवाई लेके अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखो। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना मतलब कोई भी बीमारी आपके बॉडी के अंदर गलती से भी एंटर हो जाती, मीन्स वायरस या बैक्टीरिया, तो उनके अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, फाइट करेगा, या फिर बोल सकते हैं कि उस बैक्टीरिया या वायरस को वो किल करेगा विदाउट अफेक्टिंग हेल्दी सेल्स ऑफ आवर बॉडी। In certain situations, the infected tissue may show an extreme general effect. Like in HIV infection, the virus goes to the immune system and damage its function. बट कुछ ऐसे इन्फेक्टेड मतलब बोल सकते हैं कि कई बार ऐसी सिचुएशन रहती है कि इन्फेक्टेड टिश्यूज जो होते हैं, जो आपके मतलब उस बैक्टीरिया के आने की वजह से जो टिश्यू आपका इन्फेक्टेड हुआ है, वो टिश्यूज़ क्या करते हैं, इन HIV इन्फेक्शन उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वायरस गोज टू द इम्यून सिस्टम। ये जो वायरस है ये आपके इम्यून सिस्टम में ही जाता है पहले, और इम्यून सिस्टम जो कि आपका क्या है, लड़ने वाला सिस्टम है, उसी को डैमेज करता है, उसके फंक्शन को ही वो डैमेज कर देता है। दस मेनी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एड्स आर बिकॉज ऑफ द बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट ऑफ द मेनी माइनर इन्फेक्शन दैट वी फेस एवरी डे। और इसकी वजह से जिस व्यक्ति को एड्स हुआ है वो उसका इम्यून सिस्टम एकदम वीक हो जाता है और थोड़े से इन्फेक्शन से ही वो क्या होने लगता है, फिर बीमार होने लगता है। लाइक कॉमन कोल्ड कैन बिकम न्यूमोनिया। कॉमन कोल्ड भी यदि उस इंसान को हो जाता है तो वो निमोनिया तक बढ़ जाता है। सिमिलरली अ माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस मेजर डायरिया विथ ब्लड लॉस। मतलब थोड़ा सा पेट में इन्फेक्शन हो गया है तब भी वो क्या हो जाता है, उनकी वो डायरिया तक चला जाता है और इतना बढ़ जाता है कि उसमें ब्लड लॉस भी होता है। अल्टीमेटली इट इज़ दीज अदर इन्फेक्शंस दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम एड्स। और यही एक रीज़न है कि मतलब एड्स के अलावा उस इंसान का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से बहुत सारे डिजीज़ उनको क्या होते हैं, धीरे धीरे होने लगते हैं, और उसी की वजह से वो इंसान क्या होता है, कमज़ोर होते जाता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। आपको कोई बीमारी हुई है तो आप वो कितने हद तक है, मतलब उसकी सिवियरिटी कितनी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो इन्फेक्शियस क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया या वायरस कितनी मात्रा में आपकी बॉडी में है।
या वो इन्फेक्शन कहाँ तक फैला हुआ है, उसके बेसिस पे आपकी डिजीज़ की सिवियरिटी बताई जा सकती है। इफ़ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज़ वेरी स्मॉल, द डिजीज मैनिफेस्टेशन में बी माइनर और अननोटिस। यदि माइक्रोब जो एंटर हुआ है वो उसकी नंबर ऑफ माइक्रोब्स वो बहुत कम है, तो वहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो डिजीज़ है या बीमारी है वो कैसी है, माइनर है या अननोटिस है। जैसे सीज़न चेंज हो जाता है तो बहुत से लोगों को क्या होता है, सर्दी खांसी या बुखार आता है, तो वो 2-3 दिन में अपने आप ही क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो वहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोब्स कैसे हैं, कम है। इफ़ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज लार्ज, द डिजीज कैन बी सीवियर इनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग। और यदि ये नंबर ऑफ माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन बहुत बड़ा है, तो उसमें आपकी मतलब क्या बोल सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग, आपको जान को खतरा हो जाता है। द इम्यून सिस्टम इज़ अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जो बता देगा कि आपकी बॉडी में कितने माइक्रोब्स, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स सर्वाइव हो रहे हैं। यदि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई होने नहीं देगा, उनकी ग्रोथ को रोकेगा और जो आए हैं उनको भी धीरे धीरे करके किल कर देगा। इम्यून सिस्टम प्लेज अ मेजर रोल इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है या योगदान है किसमें, कोई भी डिजीज़ को, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ से बचाने के लिए। वी लिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज़ फुल ऑफ मेनी अदर क्रिएचर्स अपार्ट फ्रॉम अस। हम एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पे हमारे अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इट इज़ इनविटेबल दैट मेनी डिजीज़ विल बी ट्रांसमिटेड बाय अदर एनिमल्स। और बहुत बार जो डिजीज़ है एनिमल्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, क्या होते हैं, एक से दूसरी पर्सन तक पहुंचते हैं। दीज एनिमल कैरी इन्फेक्टिंग एजेंट फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट। और ये एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे हम मॉस्किटो को लेते हैं, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ये क्या है, इन मलेरिया का ट्रांसपोर्ट करने वाला एजेंट है। एक्चुअली मलेरिया जो बीमारी होती है वो किससे होती है, प्लाज्मोडियम से। और वो प्लाज्मोडियम जो है वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के ऊपर या उसके पास रहता है, और वो जब वो बाइट होता है, यानी काटते हैं मच्छर, तो उस समय वो माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर होता है। तो इस तरह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या ये जो मॉस्किटो है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को काटते जाते हैं, जिसकी वजह से ये मलेरिया जैसी बीमारी क्या होती है, स्प्रेड होती है। दीज एनिमल आर दस द इंटरमीडियरीज एंड आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो ऐसे हैं जो कि बीमारी को ट्रांसपोर्ट करते हैं या क्या कर सकते हैं, एक से दूसरी जगह ले जाते हैं, पर्सन टू पर्सन, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स नहीं है, ये क्या है, कैरियर्स है उस माइक्रोब्स के या वायरस के, और जिसकी वजह से ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन जा रही है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर्स। द कॉमनेस्ट वेक्टर्स वी ऑल नोज आर मॉस्किटोज। और इसमें सबसे कॉमन है मॉस्किटो। इन मैनी स्पीशीज ऑफ मॉस्किटोज द फीमेल्स नीड हाईली न्यूट्रिशियस फूड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड इन ऑर्डर टू बी एबल टू ले मैच्योर एग्स। अब ये जो फीमेल मॉस्किटो रहती है उसको क्या है, उसका जो फूड है वो क्या है, हमारा ब्लड में से उसको जो न्यूट्रिशियस फूड मिलता है वो उसको ज़रूरी होता है टू ले मैच्योर एग्स। मॉस्किटोज फीड ऑन मेनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग अस। तो ये मॉस्किटोज का जो खाना है वो है हमारा ब्लड। इन दिस वे दे कैन ट्रांसफ़र डिजीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम अदर एनिमल टू ह्यूमन। इस तरह से वो क्या करते हैं, वो अपना खाना पाने के लिए डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और फ्रॉम अदर एनिमल टू ह्यूमंस। अब डिजीज़ से हम अपना बचाव कैसे करेंगे, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। Based on what we have learned so far, it would appear that there are two ways to treat an infectious disease. दो ऐसे वेज है जिससे हम अपनी इन्फेक्शियस डिजीज से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ द डिजीज एंड सेकेंड वन बाय किलिंग द कॉज ऑफ द डिजीज. So for the first, we can provide treatment that will reduce the symptom. The symptoms are usually because of inflammation. For example, we can take medicine that
bring down fever, reduce pain, or arrest loose motion. We can take bed rest so that we can conserve our energy. This will enable us to have more of it available to focus on healing. अब by reducing the effect of the disease, एक पहला जो इन्होंने रास्ता बताया है वो है रिड्यूसिंग द इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़। जो भी आपके डिजीज़ के इफ़ेक्ट है उसको हम रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। कैसे कम करेंगे? तो पहला है हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे। तो जो भी आप मेडिसिन लोगे उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है वो क्या हो जाएंगे, वो एक ही जगह पे, मतलब वो स्प्रेड नहीं होंगे बॉडी में। और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो यदि आपको बुखार है तो वो बुखार कम हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा, या लूज मोशन की तकलीफ़ है तो वो भी आपकी कम हो जाएगी। इसके अलावा आप बेड रेस्ट लोगे। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल देन डॉक्टर एडवाइज टू टेक बेड रेस्ट। ये बेड रेस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेड रेस्ट की वजह से आपकी जो एनर्जी है बॉडी, वो एनर्जी क्या हो जाती है, बेड रेस्ट की वजह से एनर्जी कंजर्व हो जाती है, एनर्जी सेव होती है। यदि हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, सेव होती है। और ये जो सेव एनर्जी है वो फिर यूज़ होती है किसके लिए? इट इज़ फोकस ऑन हीलिंग। जो हमें ऑर्गन में जो डिसफंक्शनिंग हो रहा है उसको ठीक करने में वो एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती है। But this kind of symptom directed treatment by itself will not destroy the infecting microbe and the disease will not be cured and may recur. अब ये सारी आप ट्रीटमेंट करते हो जो कि एक क्या बोलेंगे, आम ट्रीटमेंट है। इससे आपका जो बीमारी है, वो मेन जो बीमारी है वो ठीक नहीं होगी। मतलब उसका जो रूट कॉज है, जब तक आप उसके ऊपर मतलब उसको ठीक नहीं करोगे तो ये थोड़े दिनों के लिए क्या होगा, आपको ठीक लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक मेडिसिन टू रिड्यूस फीवर कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन, द फीवर गोज अवे फॉर सम टाइम ओनली टू रिकर अगेन। तो थोड़े दिनों के लिए आपको क्या हो जाएगा, वो माइक्रोब्स जो है उनका क्या बोल सकते हैं, उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। फिर थोड़े दिनों बाद जैसे ही आप काम करने लगोगे तो आपकी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होने लगेगी। तो that time this microbes which enter your body may be virus or bacteria, whatever disease causing microbes, then they start activating और फिर आप बीमार हो जाओगे। For that we need to be able to kill off the microbes. These days are several ways of testing that can give very specific result. तो हम लोग इसके अलावा और एक दूसरा काम कर सकते हैं कि हम वेरियस टेस्ट करके, जैसे कि आपको जो भी बीमारी हुई है उसके लिए टेस्ट करके, वायरस है, बैक्टीरिया है, चाहे फंजा है, किसी की वजह से भी बीमारी हो तो उस स्पेसिफिक टेस्ट रिजल्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, दस बाय टेस्टिंग द स्पुटम म्यूकस ऑफ कफ, जो स्वैप लेते हैं अभी कोविड-19 में गले में कुछ डाल के ऐसे, या फिर आपका ब्लड टेस्ट है, यूरिन है या स्टूल है, इसको टेस्ट करवाते हैं। द इन्फेक्टिव एजेंट इज़ डिटरमाइंड। तो इन्फेक्टिव एजेंट किसकी वजह से आपके यहाँ तक माइक्रोब पहुँचा है वो पता कर लेते हैं डॉक्टर लोग टेस्ट करवा के। एंड द डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन अकॉर्डिंगली। और फिर उसके बाद डॉक्टर उस प्रॉपर माइक्रोब को या वायरस को किल करने के लिए मेडिसिन आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लड टेस्ट कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ मलेरिया एंड द पेशेंट इज़ देन गिवन अ सर्टन डोज ऑफ ड्रग दैट कैन क्योर मलेरिया। यदि मलेरिया हुआ है तो ब्लड टेस्ट में वो आ जाता है और फिर डॉक्टर उस एक बार डिजीज़ आपका पता हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है कि मलेरिया हुआ है, देन वो डॉक्टर आपको क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि मलेरिया को क्योर करे। इट इज़ एसेंशियल टू टेक कंप्लीट डोज ऑफ द ड्रग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर कंप्लीट क्योर। और डॉक्टर जो आपको मेडिसिन लिख के देते हैं उसको क्या करना है, उसका डोज को वो कंप्लीट करना है। इन दिस वे यू कैन प्रिवेंट यूर सेल्फ। अब उन्होंने दिया है, आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, अपनी मतलब इस तरह से आप कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हो। बट आपको बीमारी हो ही ना, आप कोई बीमार ना हो, इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है या प्रिवेंशन है, उसको हम पढ़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। वी कैन लीड अ हेल्दी लाइफ इफ़ वी मेक conscious effort to take such measures that would reduce chances of having disease। यदि हम कुछ हमारी रोज़ की डेली रूटीन में ऐसे क्या बोलेंगे, ऐसी एहतियात बरतते हैं जिसकी वजह से हम लोग बीमार ही ना हो। लीडिंग अ हेल्दी लाइफ बिगिंस विद अ क्लीन एनवायरनमेंट। तो उसके लिए पहले आपको करना है कि आपके आसपास का जो भी
एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो क्लीन होना ज़रूरी है. दस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर सराउंडिंग फ्री फ्रॉम डर्ट एंड फिल्थ सो दैट वी मे कीप अ चेक ऑन सेवरल डिजीज कॉजिंग एजेंट. इसलिए आपके आसपास का जो सराउंडिंग है उसको आपको हमेशा चेक करना है और उसको वहाँ पे गंदगी जमा नहीं होने देना है. डर्ट एंड फिल्थ क्या करते हैं, वो दीज आर, उसके ऊपर जो भी माइक्रोब्स रहते हैं वो सारे डिजीज़ कॉजिंग होते हैं. तो आपको पहले अपना एनवायरनमेंट, उसके बाद आसपास का आपके घर के आसपास का सराउंडिंग क्लीन रखना है. सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रॉपर फूड, उसके बाद आपको ढंग का खाना खाना है, मतलब पूरा न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेना है. एंड रेगुलर एक्सरसाइज, और इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है. विल ऑल्सो कीप अस हेल्दी. मीन्स आपको 3 चीज़ें करना है. आसपास का आपके सराउंडिंग्स जो है एनवायरनमेंट वो क्लीन रखना है. नेक्स्ट है आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉपर फूड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगेन न्यूट्रिशियस फूड आपको लेना है जिसमें सारे मिनरल, विटामिन, फैट, प्रोटीन जो भी आपकी बॉडी को ज़रूरत है वो सारे मिले, इस तरह का खाना आपको खाना है. उसके अलावा आपको मतलब आपका डाइट रेगुलर हो, प्रॉपर हो, रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना है जिसकी वजह से आप क्या होगे, हेल्दी रहोगे. वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर दैट डिजीज हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. If the immune system of our body is strengthened, we can remain healthy for a long period of time. और इसकी वजह से आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, और इम्यून सिस्टम यदि स्ट्रांग है तो वो इंसान क्या हो जाता है, हेल्दी होता है. These days, several efforts towards ways of strengthening the immune system are being made, so disease may be warded off even before their infection. जैसे कि बहुत सारे डिजीज़ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अभी भी मेडिसिन नहीं है. तो इन सच सिचुएशन हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है. जैसे कोविड-19 की बात करते हैं तो ये जो कोरोना वायरस है इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया है मार्केट में. तो वो जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक अपने आपको क्या करना है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है. और इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग रखना है वो तो मैंने अभी बताया. देन यू हैव टू फॉलो ऑल द instructions given in your textbook. You may have heard about vaccination, which is one of the ways strengthening our immune system. वैक्सीन नहीं है तब तक आप क्या करोगे, पूरे एहतियात बरतोगे. Were you ever vaccinated and find out from the parents? डेवलपिंग इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है. ट्रेडिशनल इंडियन एंड चाइनीज मेडिसिनल सिस्टम समटाइम डेलिबरेटली रब द स्किन क्रस्ट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स विक्टिम इनटू द स्किन ऑफ अ हेल्दी पीपल. क्या करते हैं, ट्रेडिशनल जो वेज है, मेडिसिनल सिस्टम है चाइनीज़ या इंडियन, दे डेलिबरेटली रब द स्किन क्रस्ट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स होते हैं, मतलब माताएं निकलती है तो उसकी वजह से देखना वो क्या होते हैं, स्किन थोड़ी आपकी रफ हो जाती है. तो यहाँ पे ऐसा मेडिसिनल सिस्टम है, वो क्या करते हैं, फ्रॉम स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स इनटू द स्किन ऑफ अ हेल्दी पीपल, रब करते हैं स्किन क्रस्ट को. आपने कभी देखा है क्या, माताएं निकलती है उसके बाद चेहरा जो है आपका थोड़ा सा, चेहरा या हाथ पैर जहाँ पे भी वो माताएं आती है तो गड़बड़ हो जाता है, तो उसको रब करते हो, उसके ऊपर जो कवरिंग आता है उसको निकाल देते हो, उसके ऊपर कोई मेडिसिन लगाते हो तो आपका स्किन क्या हो जाता है, वापस धीरे धीरे हेल्दी होने लगता है. ये जो मेथड है ये ट्रेडिशनल मेथड है इंडियन और चाइनीज़ मेडिसिनल सिस्टम का. दे होप टू इंड्यूस अ माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट वुड क्रिएट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज. वो क्या करते हैं, दे होप टू इंड्यूस अ माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स that would create resistance against the disease. वो इंड्यूस करते हैं एक स्मॉल पॉक्स को, माइल्ड फॉर्म, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, एक रेजिस्टेंस, एक अपोज फोर्स क्रिएट होता है अगेंस्ट द डिजीज. एंड 2 centuries ago an English physician named Edward Jenner realized that milkmaids who had cowpox did not catch smallpox even during epidemics. काउपॉक्स इज़ अ वेरी माइल्ड डिजीज़. मतलब वो जो इंग्लिश फिजिशियंस थे उन्होंने बहुत 200 सेंचुरी ने 200 शतक पहले क्या बताया था कि एडवर्ड जेनर जिनका नाम था, कि जिनको पहले काउपॉक्स हुआ है,
मिल्कमेड्स हु हैड काउ पॉक्स, काउ पॉक्स हुआ है उनको ये बीमारी नहीं होती है, कौन सी, स्मॉल पॉक्स। जेनर ट्राइड डेलिबरेटली गिविंग काउ पॉक्स टू पीपल and found that they were now resistant to smallpox. This was because the smallpox virus is closely related to the cowpox virus. Cowpox virus जो है और smallpox का वायरस है, दोनों आपस में कैसे हैं, बहुत क्लोजली रिलेटेड थे. Cow is a vacca in Latin and cowpox is vaccinia. From this root the word vaccination has came into our usage. मतलब आज जो हम वैक्सीनेशन बोलते हैं तो एक्चुअली दिस वर्ड ओरिजिनेट, इसका रूट कहाँ मिल रहा है हमें, ये एडवर्ड जेनर जो फिजिसिस्ट थे या फिजिशियंस थे उन्होंने जो बताया है. काउ इज अ वाका इन लैटिन, काउ को क्या बोलते हैं लैटिन में वैका, एंड काउ पॉक्स इज वैकिनिया, काउ पॉक्स को बोलते हैं वैकिनिया. काउ पॉक्स एक स्मॉल पॉक्स के जैसा ही बीमारी है बट उससे बहुत माइल्ड है, और इसी से वैकिनिया से ही वर्ड ओरिजिनेट हुआ है वैक्सीनेशन, जो आज हम यूज़ करते हैं. वेयर यू एवर वैक्सीनेटेड, फाइंड आउट फ्रॉम यूर पेरेंट्स the vaccines that were administered to you. Vaccination is the process by which immunity towards स्पेसिफिक डिजीज इज डेवलप इन आवर बॉडी. वैक्सीनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसकी वजह से उस बीमारी के, जिस बीमारी के लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है. अ माइल्ड कंट्रोल अमाउंट यूजुअली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द डिजीज causing microorganism is introduced in the body that alert immune system, making it produce enough of agent that can fight against the disease causing microbes during actual infection. वैक्सीनेशन में करते क्या है, जो अभी वैक्सीन आएंगे मार्केट में कोरोना का या पोलियो वैक्सीन, ये सारे जो वैक्सीन्स होते हैं इनमें क्या करते हैं आपको पता है, अ माइल्ड कंट्रोल्ड अमाउंट यूजुअली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द डिजीज़, जो बीमारी का वायरस है उसका इनएक्टिव फॉर्म उस किसमें रहता है, उस वैक्सीन में रहता है. कॉजिंग माइक्रोब्स इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, हमारी बॉडी में उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब वैक्सीन के थ्रू एंटर करवाते हैं, और वो अलर्ट करता है इम्यून सिस्टम को कि वो अब उस वैक्सीन के, मतलब उस वायरस के अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे हमारी बॉडी में सेल तैयार करे कि उस माइक्रोब को वो किल कर सके. वैक्सीनेशन का मतलब क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो हो रहा है, तो पोलियो जिससे होता है, पोलियो माइलेटिस जो भी आपका माइक्रोब है, तो उसका माइल्ड फॉर्म जो है उस वैक्सीन में रहता है और वो इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में. तो जैसे ही वो इनएक्टिव फॉर्म है, वो एक्टिवेट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, बॉडी में एंटर होने से हमारी डिफेंस सिस्टम को ये तो नहीं पता है कि वो इनएक्टिव है, उसको इतना बस पता चल जाता है कि ये जो है एक वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, तो वो हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, उससे मतलब उसको किल करने के लिए या उसके अगेंस्ट बहुत सारे सेल्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, और दैट कैन फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. तो इसकी वजह से क्या होता है, जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उसके लिए तैयार हो जाती है. इसलिए बोला जाता है कि कोई भी बीमारी का वैक्सीनेशन या वैक्सीन 2-3 साल तक नहीं आती है तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है अगेंस्ट दैट डिजीज. In this way we have completed, I think, the vaccination and the vaccine point is clear to you. जो भी बीमारी होती है ना, जिस वायरस से हो रही है, तो उसका जो एकदम माइल्ड फॉर्म उस वैक्सीन में वो लेते हैं और इंजेक्ट करते हैं उस पर्सन में जिसको वैक्सीनेट करवाते हैं. तो वो कैसा होता है, वो माइक्रोब इनएक्टिव रहता है, बट हमारी डिफेंस सिस्टम जो है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको ये पता नहीं रहता है कि ये इनएक्टिव है. उसको बस ये दिख रहा है कि वो एक वायरस एंटर हुआ है और उसको उसके अगेंस्ट फाइट खेलने के लिए वो बहुत सारे एजेंट्स अपने या बहुत सारे सेल्स बॉडी में क्रिएट करता है और उसको किल करता है. तो इस तरह से क्या होते हैं कि ये हमारी बॉडी को अलर्ट कर देता है इम्यून सिस्टम को. तो जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करने लगता है.
I think vaccination point is clear to you. You read the chapter we have completed. Thank you.